નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું અમારા ખાસ કાર્યક્રમ ડે સ્પેશિયલમાં આજે વાત કરવાની છે એવા ખાસ વ્યક્તિની કે જે આ કોરોના કાળમાં ઘણા બધા લોકોને મદદરૂપ થયા છે। જો કે કહી શકીએ કે આ કોરોના કાળમાં ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે લોકો આગળ આવ્યા એવા લોકોને મદદ કરવા માટે કે જે લોકોએ આવા સમયમાં ઘણી પરેશાનીનો સામનો કર્યો છે। ઘણા બધા લોકોએ પોતાના પરિવારજનોને ગુમાવ્યા છે, તો ઘણા બધા લોકોએ ક્યાંક આર્થિક સ્થિતિના કારણે અને સાથે સાથે સ્વસ્થ ન હોવાના લીધે પણ ઘણી પ્રોબ્લેમ્સનો સામનો કર્યો છે। અને એવા સમયમાં જે સ્વસ્થ લોકો કે પછી કદાચ કહી શકીએ કે ઘણા એવા મદદરૂપ થયા લોકો કે જે લોકો આગળ આવ્યા અને આગળ આવીને એવા લોકોને મદદ કરી, અને સાથે જ એવા સમયમાં સૌથી વધારે જો જરૂરી કંઈક હોય તો એ કહી શકીએ છીએ કે માનસિક રીતે લોકોને સ્વસ્થ રહેવા માટેની અવેરનેસ પહોંચાડવી। કારણ કે આ કોરોના કાળમાં લોકો શારીરિક રીતે તો હેરાન થયા, પરંતુ તેની સાથે સાથે ઘણા લોકો માનસિક રીતે પણ હેરાન થયા। અને અહીંયા સાથે જ વાત કરીએ, બધા જ લોકોને અહીંયા હેરાન થવું પડ્યું છે, પરંતુ મહિલાઓની ખાસ અહીંયા વાત કરવાની છે। કારણ કે જ્યારે મહિલાઓ ઘરે પણ રહી છે અને સાથે જ એવા સમયમાં કદાચ કહી શકીએ કે ઘણી મહિલાઓને નોકરી ગુમાવવાનો પણ વારો આવ્યો છે। એમ તો ઘણા લોકોની સાથે એવું બન્યું છે કે જે લોકો બેરોજગાર થયા છે, પરંતુ આજે ખાસ મહિલાઓની પણ જો વાત કરીએ તો કોર્પોરેટ સેક્ટરથી કઈ રીતે દૂર થઈ ગઈ છે મહિલાઓ, અને એવી મહિલાઓ કે જે લોકો કદાચ હિંમત હારી ગઈ હોય એવી મહિલાઓને કઈ રીતે મદદરૂપ થયા છે એવા વ્યક્તિની આજે આપણે મુલાકાત કરવાની છે કે જેમણે મહિલાઓની જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, કે જેમણે આ હતાશાના વાતાવરણમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। એવા હિતા એનજી પટેલ અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે, જેઓ ડાયરેક્ટર છે એનજી ગ્રુપના। હિતા એનજી પટેલજી, આપનું સ્વાગત છે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં। હિતા એનજી પટેલ અત્યારે આપના સ્વાગત છે ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં। આપનું સ્વાગત છે ડે સ્પેશિયલમાં। થેન્ક યુ। ગીતાજી, આજે વાત કરી રહ્યા છે જ્યારે ખાસ કરીને કોરોના કાળની આ પરિસ્થિતિ, અને સાથે જ આજે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે જે રીતે આપ લોકોને મદદરૂપ થયા છો તે જાણવાનો પણ અહીંયા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ત્યારે સૌથી પહેલા આપને પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે કોરોના કાળમાં આ કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ, અને સાથે જ પરિસ્થિતિને જોતા કઈ રીતે શરૂઆત કરી લોકોની મદદ કરવાની, અને કઈ રીતે લોકોને મદદ કરી રહ્યા છો? કોરોના પરિસ્થિતિ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આપણા ત્યાં ચાલી રહી છે, જેની અંદર दुखों परिस्थिति आपने देखने को जाता है तो बहुत खतरनाक है। इट इज़ लाइक अ नाइटमेरिश फॉर पीपल। जहाँ पे हम देखते हैं तो मुझे इस बार इस टाइम पे लाइक पिछले 1.5 महीने में इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, सब यूएस से, दुबई से, राजकोट, जामनगर, सब जगह से अपने इतने सारे कॉल्स आए हैं कि हमको कहीं पे बेड ला के दो, हमको आईसीयू चाहिए, हमको वेंटिलेटर चाहिए, हमको रेमडेसिविर इंजेक्शंस चाहिए। जो ये परिस्थिति जैसी बनी है वो परिस्थिति ऐसी दैनिक है कि हमको मदद करनी भी होती है, फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे हटते हैं। बट इस दरमियान मैंने बहुत कुछ लोगों की सेवा की है, बहुत कुछ लोगों को मदद किया है, बहुत लोगों को आईसीयू बेड, वेंटिलेटर सब ढूंढने में मदद की है, और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक जो अपनी मेडिसिन है, क्रिटिकल मेडिसिन, देन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सब जगह से हमने ट्राई किया है कि हम लोगों को मदद कर सके और लोगों को जितना हो सके उतना मानसिक शांति दे पाए। गीता जी, कैसे कैसे कॉल्स आ रहे थे इन दिनों में, और वो कॉल्स के मतलब एक्चुअली मैं सुन के आपको भी हमें ऐसा लगता है कि लोग किस प्रकार की परिस्थिति में अभी देखने मिल रहे थे, और ऐसे समय में आपने कैसे लोगों की मदद की, कैसे कॉल्स आ रहे हैं? ओके, मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ। अब जमालपुर से एक अननोन आदमी का फ़ोन आया मेरे पे। वो थे यूएस में, उनका नाम था जी वसीम भाई। वसीम भाई का मेरे पे फ़ोन आया। अब मुझे शायद मैं इतने लोगों की सेवा करती हूँ तो शायद मेरा नंबर कहीं से गया होगा या उनको मिला जी जी। होगा। सो उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरी माताजी अस्पताल में एडमिट है और मुझे किसी भी तरह से मेरी माताजी को बचाना है। प्लीज़ आप हमको मदद करो, प्लीज़ आप हमको कहीं से रेमडेसिविर इंजेक्शन ला के दो। ये बहुत क्रिटिकल और मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैंने उनको बोला कि आप कुछ चिंता मत करो, मैं अपने हिसाब से पूरा प्रयत्न करती हूँ उनकी मदद करने के लिए। बाद में उन्होंने अपने रिलेटिव का नंबर दिया, जहाँ पे मैंने उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन करवा के दिया, सब कुछ करवा के दिया। बट उनका ऑक्सीजन इतना गिरते गया
कि वो नहीं बच पाए। बट उन्होंने बाद में, वसीम भाई ने मुझे फोन करके भी बोला कि हिता बहन, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी अननोन होके भी इतनी मदद की। देन ऐसे ही मुझे एक राजकोट जामनगर से फोन आया था कि वहां पे अस्पताल में जगह नहीं थी, तो उनकी बीवी का कुछ ऑक्सीजन लेवल 90 हुआ था, तो जी। ही वांटेड टू शिफ्ट हिम टू बॉम्बे, सॉरी हम्म। अहमदाबाद। सो अहमदाबाद पे बोला कि हमको अस्पताल में एडमिट करना है। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी वाइफ की स्थिति क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 92 है, 92 रहता है, और अभी डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोई अच्छी अस्पताल में उनको भर्ती करवाना पड़ेगा। तो जी। मैंने तब उनको बोला कि आप 92 में 4 घंटे की जर्नी करके आओगे और रास्ते में कुछ हुआ तो क्या करोगे आप। सो आई वुड से कि अभी इतनी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, सो आप वहीं पे ट्रीटमेंट करके जितना हो सके उतना स्टेबल, माने उनको बचाने की कोशिश करो, उनको ठीक करने पे ध्यान दो। देन ही लिसन टू मी। देन अगेन 2 दिन के बाद उनका फोन आया कि मैंने राजकोट की नई नई नजदीकी अस्पताल में उनको भर्ती किया है, एंड शी इज डूइंग मच बेटर ऑफ। जी, जी। और ये कह सकते हैं कि आपको बहुत-बहुत मतलब कह सकती हूँ कि थैंक्स भी कहना चाहेंगे कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतने लोगों की आपने जान बचाई है। और जो आप बता रही हैं कि जिस तरह की एडवाइस जिसकी ज़रूरत शायद इस समय में सबसे ज़्यादा थी। कई बार ना इतनी सिचुएशन खराब ना होते हुए भी लोग इतने घबरा जा रहे थे कि उन्हें प्रॉपर एडवाइस प्रॉपर समय पर नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से भी लोग वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे थे। और बिल्कुल इसीलिए सही ऐसे बात है। समय पर आपने जो एडवाइस दी है, ऐसी एडवाइस लोगों की बहुत ही काम आई है। और इसी के साथ हिता जी, अब जब बात कर रहे हैं हम महिलाओं की, तो इस समय में क्या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, इस वजह से काफी सारे लोगों ने अपनी नौकरियां भी गंवा दिया। और सबसे ज्यादा जो बात करें कि एक तो वैसे ही लेडीज लोग जब काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं उसको लेके कई सवाल खड़े होते हैं। और अभी कोरोना के टाइम में काफी सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी नौकरियां भी जा चुकी हैं। तो ऐसे लोगों की भी, ऐसी महिलाओं की पण अभी आपने मदद की है, तो जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने उनकी मदद की है। वर्क फ्रॉम होम से जो भी महिलाएं हैं, उनकी जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाई हैं आप? ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने पता चला कि रातों रात अचानक से बच्चों में कोविड फैल रहा है, हाँ और जी। माता पिता की एक जान होते हैं, सो उनको वो जान, अब किसी भी माता पिता को अपने जान पे जब जान आ पड़ती है, तो सबकी सबकी मानसिक स्थिति आप जानते हो कैसी हो जाती है। हाँ जी। तो जी। उस दरमियान उस माता पिता का, और खास करके महिलाओं का, जो माता होती है, माता अपने बच्चे के साथ इतनी अनकंडीशनल प्यार देती है, इतनी अटैच्ड होती है। उस टाइम पे तुरंत ही हम लोगों ने, मेरी लीडरशिप ने, मैंने तुरंत कोविड इन किड्स करके वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, जहां पे ओके। मैंने 2 पीडियाट्रिशियन को बुला के, डॉक्टर अंकित मेहता फ्रॉम जायडस हॉस्पिटल एंड डॉक्टर हर्ष मोड, उन लोगों के साथ रातों रात वेबिनार अरेंज करके हर एक माता पिता की चिंताएं दूर की। ऐसे ऐसे सवाल जब माताएं पूछ रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, ये काम अपने ने अच्छा है कि डॉक्टर अंकित मेहता ने और हर्ष मोट ने इतने आउट ऑफ द वे जाके सबके क्वेश्चंस लिए, सबको राहत दी, और उनको कैसे बच्चों को पैनिक नहीं होते हुए, कैसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या होते हैं, और कब जाके बच्चों को आपको अस्पताल में भर्ती करने का भी सोचने का है। ये सब तरह के क्वेश्चन आंसर्स करके हमने पूरी एक कोविड इन किड्स का वेबिनार किया था। देन उसके बाद जब डबल म्यूटेंट स्टेन आया, तो डबल म्यूटेंट स्टेन के बारे में भी लोगों में बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। तो उस टाइम पे भी हमने, जो अपने मशहूर रिनाउंड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर है, डॉक्टर पार्थिव मेहता और डॉक्टर राकेश शर्मा फ्रॉम स्टर्लिंग हॉस्पिटल, उनके साथ रह के हमने अनदर वेबिनार किया, जिसके अंदर हमने माताओं को चलते हुए जो बच्चों को कुछ होता है और मानसिक उनको जो लोड आता है, और जिससे वो साइकिक प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए हमने शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर कलराव मिस्त्री को भी साइकेट्रिस्ट तौर पे पैनल में लिया, और सबका ओके। हर एक क्वेश्चन को हमने दूर किया। रही बात जब एम्प्लॉयमेंट की, सो आपको जब पता है कि अभी कोरोना में काफी कंपनियों ने ले ऑफ किए हैं, सो हम्म। ले ऑफ में काफी महिलाओं को भी ये झेलना पड़ा है, ले ऑफ। एंड हम्म। अभी जब भी कोरोना बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक एक फैमिली के मेंबर को कोरोना आ रहा है। जब भी फैमिली में कोरोना आता है, तो स्त्री जो आउट ऑफ द वे जाके उनको सब कुछ करना पड़ता है, अपने आप को भूल के भी लोगों की सेवा में जोड़ना पड़ता है। सो उस टाइम पे महिलाओं ने काफी हद तक
जाके सबकी सेवाएं की है, अनकंडीशनल प्रेम से लोगों के साथ खड़े रहे हैं और सब मुसीबतें अपने पे झेली है। जी, जी, जी। और ऐसी ही महिलाएँ जब खुद प्रॉब्लम में आईं, तो उनके जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाने का आपने प्रयास किया और कैसे आप सक्सेस हुईं? मैंने सबसे पहले ये सोचा कि स्त्रियाँ जब इतने सारे दर्द झेल रही है, इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रही है, कभी नहीं हम बाहर जा सकते हैं, नहीं कोई एंटरटेनमेंट मिल रहा है, नहीं हुँ, कुछ भी हो रहा है, तो उस समय में मैंने काफ़ी फीमेल एंटरटेनमेंट और फिटनेस और हेल्थ के रिलेटेड वेबिनार्स किए। सबसे पहले वेबिनार मैंने वर्कशॉप सबसे पहले मैंने जो किया, वो था 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज बाय पूजा हुँ, परियानी, जहाँ पे हमने न्यूट्रिशन को भी रखा था साथ में। जो भी लेडी को अभी घर पे मानसिक स्थिति से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हैं या परेशानी आई है, तो उसके लिए रिलेटेड हेल्थ डाइट के साथ डांस कॉम्बिनेशन का वर्कआउट करके उनको इनमें से हमने काफ़ी मदद की 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज से। देन उसके बाद हमने ये 2 वेबिनार्स किए, देन ओके। उसके बाद मैंने उनको एंटरटेनमेंट देने के लिए, क्योंकि एक क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो आदमी को एक भगवान के साथ जोड़ती है। सो उसमें हमने ज़ेंट एंगल आर्ट का एक वर्कशॉप किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था और इट वाज़ ओपन फॉर ऑल द फीमेल्स, जहाँ पे हुँ, कई कई सारी फीमेल्स आई और उन्होंने और उनके बच्चों ने भी साथ में आके ज़ेंट एंगल आर्ट का अलग से एक कला सीखी और एक सुपर्ब एंटरटेनमेंट सबको मिला था। देन उसके बाद जब मदर्स डे जो आया, ऐसे टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है कह सकते हैं। जिस तरह की मानसिक स्थिति का सामना अभी लोग कर रहे हैं, तो वैसे समय पे ऐसा कोई एंटरटेनमेंट वर्कशॉप तो शायद लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं उपयोगी साबित हो सकता है। उसमें हमने एक डांस वर्कशॉप किया है, जो अभी चल भी रहा है। टुडे इज़ हुँ, द 5th डे ऑफ डांस वर्कशॉप, डांस मैनिया है, जो बाय अंगना गोसवालिया के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे हमने ओके। फीमेल्स को कंप्लीटली कोरियोग्राफी सिखा रहे हैं, जहाँ पे वो इस मानसिक स्थिति से बाहर आके अच्छा-सा एंटरटेनमेंट करें और अच्छा अपने आप को खुश कर रखें। सो हुँ, हमारी इस दुनिया में अपना खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है दूसरों को खुश रखने के लिए। सो उसको ध्यान में रख के हमने डांस मैनियर वर्कशॉप किया। देन मदर्स डे पे हमने कुकिंग वर्कशॉप विद कॉन्टेस्ट किया। देन हमने एक गिफ्ट वर्कशॉप किया, जहाँ पे हर एक अलग-अलग तरह की गिफ्ट कैसे रैप करते हैं और कैसे छोटी खुशियों को कैसे बड़े में बता सकते हैं, वैसा वर्कशॉप करके हमने लोगों को एक एक्टिविटी दिया, एक मानसिक रूप से लोगों को प्रवृत्त किया एंड उनको कुछ नई लर्निंग प्रोसेस दी। So this is हुँ, what we did, and again now very soon we are coming up with digital marketing, कि हुँ, अभी जैसे ही मैंने आप जैसे आपको बताया कि ले ऑफ बहुत ज्यादा हुए हैं, सो नाउ व्हाट फीमेल हैज स्टार्टेड डूइंग इज होम वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट लाया है, राइट? सो हुँ, वर्क हुँ। फ्रॉम होम से लोगों को कैसे अपने आप को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने का, कैसे लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाने का, अपने काम को पहुंचाने का, उसके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप आ रहा है, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कैसे अपने आप की प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, कैसे आपकी कला को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो सब सिखाने को आएगा। दैट जी, इज मतलब मीता जी वर्क फ्रॉम होम ये जो सबसे ज़्यादा शायद महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि अभी काफ़ी सारी महिलाएँ हैं जो शायद बच्चों की वजह से या अपने परिवार की वजह से बाहर नहीं निकल पाती होंगी क्योंकि अभी इस लहर की बात करें तो बच्चों पे उसकी सबसे ज़्यादा असर होने वाली है जिसको लेके बहुत ही जो भी पेरेंट्स हैं चिंता में हैं। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा यही होता है कि महिलाएँ बाहर निकल नहीं पाएँगी। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, जिस तरह की आप बात करें कि जो वर्क फ्रॉम होम जो ये महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा रीता जी, कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा, यू आस्किंग मी? जी, जो वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट की आप बात कर रहे हैं, उस कंसेप्ट के बारे में हम महिलाओं को क्या बता सकते हैं? ओके, मैं चाहती हूँ कि मैं इस डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप है, वो खास करके मैं महिलाओं के लिए कर रही हूँ। मैं हुँ, चाहती हूँ सबसे सब ज़्यादा मात्रा में महिलाएँ इसमें आए और सीखें कि कैसे फेसबुक में पेज क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम में कैसे पेज क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जी। कैसे उस पे अपनी प्रोडक्ट को डालते हैं, कैसे उसके वीडियोज़ बनाते हैं, कैसे उसको मार्केट करते हैं, पेड प्रमोशन, बूस्टिंग, एवरीथिंग विल बी टॉट टू देम, and I really want that
जरूर से ज्यादा मात्रा में लोग आए और उसको सीखे और उसका उपयोग करें। जी, जी। और इसी के साथ इस समय में मतलब ये जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन समय है गीता जी। इस समय में जो मदर्स डे पर आपने वर्कशॉप किया वो वर्कशॉप से क्या मैसेज गया है लोगों को? और उसी के साथ उस वर्कशॉप के बारे में अगर बात करें तो उसने जो मैसेज दिया है उसके बाद वर्कशॉप के बाद वो कितना उपयोगी साबित हुआ है? उससे किस तरह का परिवर्तन देखने मिला है? मदर वर्कशॉप जो अपनी माँ है, माँ एक अद्भुत मूर्ति है। माँ एक ऐसी इंसान है हमारे जिंदगी में जो एक अनकंडीशनल लव, फेथ अपने साथ हर एक मुश्किल में खड़ी रहती है। वो अपने आप को भी भूल के हर बच्चों के साथ खड़ी रहती है। उस समय में हमने मदर्स डे पे सबको ये बताया कि माँ आज आपके जिंदगी में है, कल नहीं भी हो सकती है। सो आज जो आपकी जिंदगी में है उसको आप अब भी उसको अप्रिशिएट करो, अब भी उसको आनंद दो, अब भी उसको सुखी सुखी करो और अब भी उसके साथ समय बिताओ। मरने के बाद आप कुछ भी करने को जाओगे उसका कुछ भी असर माँ को नहीं होने वाला है। हुँ, सो माँ जब आपकी जिंदगी में है तब सबसे ज्यादा माँ को खुश रखो, उसको समय दो और हुँ। अनकंडीशनल लव दो, उनको अप्रिशिएट करो। दैट इज द मैसेज दैट आई गिवन टू द पीपल। एंड उसके साथ कंटेस्ट करके दूसरे दिन जब मदर्स डे था, मैंने मदर्स डे के एक दिन पहले ये वर्कशॉप किया था, सो दैट मदर्स डे पे हर एक चिल्ड्रन जो पार्टिसिपेट हुए थे उन्होंने अपने मदर्स के लिए वानगियां बनाई, उनके साथ सेल्फी की, उनके साथ क्रिएटिव कार्ड्स खुद कार्ड्स बनाए, होममेड हैंडमेड कार्ड्स बनाए और माँ को प्रेजेंट किया। और उससे जो माँ के चेहरे पे खुशी आई है और जो हमको पिक्चर्स मिले हैं और जो हमको मैसेजेस आए हैं, वी जस्ट कनेक्टेड चिल्ड्रन विथ मदर एंड मदर्स आर फीलिंग रियली रियली ब्लेस्ड विथ जी। बिकॉज ऑफ दिस। गीता जी अभी ऐसे प्रयासों की कितनी जरूरत है? कैसा जो समय चल रहा है जिसमें जिनकी लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब देखने मिल रही है, काफी लोग बेरोजगारी की वजह से तो काफी लोग बीमारी की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में एक सकारात्मक परिवर्तन की कितनी जरूरत है, वो हम कैसे ला सकते हैं? और इसी के साथ जैसे कि ऑनलाइन वर्कशॉप, जैसे कि आपने काफी सारे ऑनलाइन वर्कशॉप किए जिससे एक मैसेज लोगों तक पहुंच सके, ऐसे ऑनलाइन वर्कशॉप स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? अब मैं चाहती हूँ कि हर एक आदमी हर इंसान के साथ खड़े रहे। इंसानियत ही इस ज़माने में सबसे महत्व की चीज़ है। इंसानियत हर एक आदमी में होनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने आप को कोरोना की मुसीबत तो सब झेल रहे हैं, सो उसको सोचने की जगह उसमें से कैसे बाहर निकले उस पर ध्यान रखे। अपने आप को अच्छी चीज़ों, अच्छा रीडिंग, अच्छी वर्कशॉप, अच्छी चीज़ें सीखे। ये जो टाइम अपने पास आया है उसका सदुपयोग करे और उसके अंदर उसमें कोई आर्ट है कि कोई म्यूजिक है कि हर एक बंदे में एक हिडन टैलेंट होती है, हिडन आर्ट होती है। उसको इतने सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, लोग हर एक आदमी को खुश रखने के प्रयत्न कर रहे हैं, काफी संस्थाएं हैं जो ये सब चीजें कर रही है, उसका उपयोग उठाए और अपने आप को पॉजिटिविटी में एंग्रोस करे, एनर्जी से भरे, अच्छा वर्कआउट करे, हेल्थ पे ध्यान रखे, मानसिक स्थिति पे ध्यान रखे और अपने और दूसरों को खुश रखे। जी, तो जी इसी के साथ महिलाओं के लिए जो ऑनलाइन काम कर सके या फिर एक और जो गिफ्ट रैपिंग की अलग-अलग टेक्निक भी आपने सिखाई है महिलाओं को, और ऐसा क्या-क्या हम कर सकते हैं जिससे कि ऐसे समय में महिलाओं और साथ ही साथ सभी लोगों को हेल्पफुल हो सके? मैं महिलाओं को एक समाचार देना चाहती हूँ। देर आर सो मेनी थिंग्स देर आर देयर इन द मार्केट that you can really learn. You can make yourself empowered, you can become independent, you हुँ, don't have to depend on anybody. आपके पास भगवान भगवान ने आपको एक इतनी अच्छी शक्ति दी है, खास करके महिलाओं को, जो हर चीज से लड़ सकती है, हर चीज पे अब हर पैरों पे अपने पैरों पे खड़ी रह सकती है, जी। सबकी मदद कर सकती है। सो आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व रूप में निखारो कि जहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े, आपको सिर्फ बांटना ही बांटना हो और आपको जहाँ पे आप दूसरों की मदद कर सके। और यहाँ पे सब जितने भी चीजें अवेलेबल है, सपोज आर्ट है या हेल्थ है या न्यूट्रिशन है या कारपेंटर, नॉट कारपेंटरी बट आई एम टू से दैट जो एम्ब्रॉयडरीज है या हुँ। पेंटिंग है, म्यूजिक है, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ फीमेल कैन डू। सो जस्ट ट्राई टू डू समथिंग यूनिक इन योर लाइफ and do something good for yourself, make yourself independent and
just live your life to the fullest. लेकिन नीता जी, होता है ना कहीं जवाबदारियों का जो बोझ महिलाओं पर ज्यादा होता है, इस वजह से शायद इतना आगे नहीं आ पाती हैं, या फिर जो करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। उन तक जब महिलाएं इतनी ये सारी पॉजिटिविटी तक नहीं पहुंच पाती ना, तब ये पॉजिटिविटी महिलाओं तक कैसे पहुंचे, ये सोचना बहुत जरूरी है नीता जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मैं एक कहना चाहती हूँ कि ज़िम्मेदारी ऐसी चीज़ है, वो हर ज़िंदगी रहने वाली है। ज़िम्मेदारी निभाना एक हमारा कर्तव्य भी है। ज़िम्मेदारी से हटने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़िम्मेदारी हम्म बनती हमको निभानी है। हम्म बट एट द सेम टाइम हमें अपना भी देखना है। हम खुश हम्म रखेंगे तो दूसरे को खुश रख पाएँगे। हम हमारे में प्यार होगा तो हम दूसरों को प्यार दे पाएँगे। If we are frustrated, we cannot make anybody happy. If we are sad, we cannot make anybody happy. So first हमको अपना देखना है। अब हमको खुश रखना है, तभी जाके हम दुनिया को प्यार और शांति बांट पाएंगे। और So ये दूसरे लोगों को भी समझना जरूरी है नीता जी। सबको समझना जरूरी है। सबको, महिलाएं खुद तो ये क्योंकि सोचें, लेकिन उनके परिवार वाले और उनसे जुड़े हुए लोग अगर ये सोचेंगे तो शायद ये ज्यादा हो पाएगा। एब्सोल्युटली, और सबको सोचने का जरूरी है कि महिलाएं जो होती है, लेडी स्पेशली इन द फैमिली। मैंने जैसे आपको बताया कि एक जन को कोरोना घर में होता है तो सिर्फ उस बंदे को कोरोना नहीं हो रहा है, महिला भी इसके साथ एज गुड एज महिला भी क्वारंटाइन हो जाती है, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे जाके सब कुछ करती है। टिफिन बनाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, उसकी दवाइयों का ध्यान रखने से लेके सब कुछ महिलाएं करती है। सो मैं चाहती हूँ कि हर परिवार के मेंबर को समझना चाहिए कि वो भी इंसान है, उसकी भी खुशियां है, उसकी भी इच्छाएं होती है। उसका ध्यान रखो, और जो आप जितना उसका ध्यान रखोगे उतना ही वो आपका अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। जी 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 हीता जी, तो अंत में ये कोरोना काल में क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं कि ये अभी जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, इसमें इंसानियत जो है उसे हम याद रखें और उसे ज्यादा से ज्यादा महत्व दें, जिससे कि हम लोगों के लिए मदद रूप हो सके, और साथ ही साथ अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके मदद करके उन्हें इस समस्या में से बाहर निकाल सके। इस कोरोना टाइम में क्या एक मैसेज आप देना चाहती हैं? मैं कोरोना टाइम का मैसेज सबको बोलना चाहती हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू बी रियली कॉशियस अबाउट एवरीथिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो, जहाँ पे जो स्थिति है उसका वेलकम करके उसका आदर करो और उसको फॉलो करो। और रही बात, जब वैक्सीनेशन आता है, आपका टाइम आता है, प्लीज वैक्सीन ले लो, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो और दूसरों को भी बचा पाओगे। तीसरी बात, जब आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुश रख पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्लीज खुश रखो और अपने थकी दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करो। जी 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 हीता जी, जैसा कि आप कर रही हैं, तो आशा रखूंगी कि आप एक इंस्पिरेशन साबित हो, और जैसा कि आपके काम के बारे में लोगों को बताया, वो सुन के लोग भी उसी तरह का प्रयास करें, अपने आसपास के लोगों को इस कोरोना काल में खुश रखने का प्रयास करें। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आपका धन्यवाद कि आप कर रही हैं, वो लोगों के लिए एक मिसाल साबित हो रहा है। तो हीता जी, थैंक यू सो मच। થેન્ક યુ। તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આજે વાત કરી છે હિતા પટેલ સાથે, અને સાથે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે કોરોના કાળમાં કઈ રીતે લોકોને મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે, મહિલાઓની જીવનશૈલીને માં પરિવર્તન લાવવા માટે કેવા પ્રકારના પ્રયાસો હાથ ધરી રહ્યા છે, ઓનલાઈન વર્કશોપ કરીને લોકો સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। અને સાથે જ કહી શકાય છે કે એક મેસેજ જે અહીંયા જાય છે કે દુઃખ જે છે એ વહેંચવાથી ઘટતો હોય છે અને પ્રેમ અને ખુશી વહેંચવાથી વધતી હોય છે। તો લોકોના દુઃખને ઓછું કરવા માટે આપણે પણ ચોક્કસપણે અહીંયા મદદરૂપ થવું જોઈએ અને પ્રયાસ કરવો જોઈએ હિતાજીની જેમ। તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે।